تمہیں ڈھونڈ لیا گیا ہے، تمہارے پاس بھاگنے کو 5-10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہے، موبائل فون گندے نالے میں پھینک دینا۔ ایک ہی سانس میں اطلاع، منصوبہ اور ہدایات سنا کر رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اطلاع ایسی نہ تھی کہ میں تفصیل پوچھنے میں وقت ضائع کرتا۔ میرے خفیہ خیر خواہوں کے پاس وضاحتوں کا وقت تھا، نہ میرے پاس سننے کی مہلت۔ میں بھاگ کر اندر گھسا۔ کیپٹن 5 منٹ میں نکلنا ہے، کار یہیں لے آؤ۔ لورا وضاحت چاہے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ موقع محل اور صورتحال کو اچھی طرح سمجھتی تھی اور ایسے مواقع پر وقت ضائع کرنے کی عادی نہیں تھی۔ سب سے پہلے میں نے پرما کے سر سے کمبل کھینچا۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی گردن بازو کے شکنجے میں کس کر مخصوص دباؤ ڈالا۔ وہ زور سے تڑپی اور پھر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں نے ہتھکڑی چارپائی سے کھول کر اس کے ہاتھ پاؤں جکڑے اور منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ پھر ضروری سامان کا بیگ کندھے میں ڈال کر اسے کمبل سمیت بازوؤں میں اٹھایا اور سرسری نظر اندر دوڑا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دروازے تک پہنچنے تک لورا کار لے آئی تھی۔ بیگ اور پرما کو ڈگی میں ڈال کر میں نے ڈگی قفل کی۔ گلی میں 2 کاریں سڑک کی طرف روانہ دکھائی دیں۔ ایک کار کی روشنیاں عقب میں بھی نظر آ رہی تھی، مگر ان کی رفتار دیکھ کر مجھے خطرے کی کوئی بات نظر نہ آئی۔ گاڑی ان کاروں کے بیچ میں لگا لو، اب کال پر بات ہوگی۔ لورا کو ہدایت دے کر میں اندر گھس گیا۔ موٹر سائیکل صحن میں کھڑی تھی۔ میں دوبارہ کمرے میں گھس گیا۔ سامان کو آگ لگائے بغیر جانا مناسب نہ تھا۔ گو وقت کی کمی اور سامان میں ایسی اشیاء موجود نہ تھیں جنہیں جلانا ناگزیر ہوتا۔ بستر، جوتوں اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز موجود نہ تھی۔ سنائپر رائفلیں اور ضروری سامان پہلے سے کار کی ڈگی میں بند ہوتا تھا۔ صرف چھوٹا سا بیگ ہم پاس رکھتے تھے جس میں رقم اور میک اپ کا سامان ہوتا۔ جلدی سے چارپائیوں کو گھسیٹ کر ایک دوسرے پر پھینکا، اندر موجود تمام چیزوں کو ایک جگہ ڈھیر کیا۔ گیس سلنڈر کو آگ لگا کر چارپائی کے نیچے رکھا اور باہر نکل آیا۔ موٹر سائیکل پکڑتے وقت خفیہ مددگاروں کے موبائل فون کا خیال آیا جو انہوں نے نالے میں پھینکنے کا کہا تھا۔ میں نے دوبارہ اندر گھس کر موبائل فون بھی آگ میں پھینکا اور موٹر سائیکل کو پکڑ کر دروازے سے نکلنے لگا۔ غیر ارادی طور پر نگاہ گلی اور سڑک کے ملاپ کی طرف اٹھی۔ تیز رفتاری سے آتی تیز روشنیوں نے میری ٹانگوں میں بجلی بھر دی، لیکن جتنی بھی تیزی کرتا تیز رفتار گاڑیوں سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ کک مار کر موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گیئر لگا کر چل پڑا۔ سامان ضائع کرنے کی احمقانہ احتیاط پسندی اور جاسوسوں کے نقش قدم پر چلنے کا شوق میری گردن پھنسانے والا تھا۔ مسلسل گیئر لگا کر میں چوتھے گیئر میں موٹر سائیکل بھگانے لگا، مگر عقب میں پھیلی تیز روشنی ظاہر کر رہی تھی کہ کم از کم ایک کار نے کھولی کے سامنے رکنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ موٹر سائیکل اس قابل نہ تھی کہ میں کار کا مقابلہ کر پاتا۔ روشنیاں لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھیں اور میری بدقسمتی سے وہ گلی کافی طویل اور بالکل سیدھی تھی۔ میری جان تبھی بچ سکتی تھی کہ کوئی تنگ گلی نظر آتی جس میں کار نہ چل پاتی۔ ایجنسی والوں کے پاس یوں بھی نئی اور عمدہ کاریں ہوتی ہیں اور میں ایک ایسی ہی کار سے مقابلے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کار قریب پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور کا ارادہ بالکل واضح تھا، وہ مجھے ٹکر مار کر روکنے کی تگ و دو میں تھا۔ میرے پاس موٹر سائیکل روکنے کا موقع بھی نہیں رہا تھا۔ ایک دم بریک لگانے سے بچت نظر آ رہی تھی، نہ رفتار آہستہ کرنے کی گنجائش تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کار موٹر سائیکل کے عقبی پہیے سے ٹکرائی۔ میں ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار تھا۔ ہینڈل چھوڑ کر اچھلا اور جو ہی زمین سے قدم ٹکرائے، لوٹ لگا کر خود کو زخمی ہونے سے بچانے کی تگ و دو کرنے لگا۔ موٹر سائیکل پھسلتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ ڈرائیور نے زوردار بریک لگا کر کار روکی اور میرے سنبھلنے سے پہلے وہ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے آندھی اور طوفان کی طرح برآمد ہوا۔ میرے پاس ہاتھا پائی کا وقت نہیں تھا۔ دوسرے لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مجھے کار میں موجود لوگوں کو ناکارہ کر کے بھاگنا تھا۔ میرا ہاتھ فوراً جیب میں رینگا، مگر کار سے برآمد ہونے والا شخص یقیناً چھلاوا تھا۔ ہاتھ کوٹ سے باہر آنے سے پہلے اس کی زوردار ٹکر میری چھاتی میں لگی اور میں کولہوں کے بل نیچے گر گیا۔ الٹی لوٹ لگاتے ہوئے میں فوراً اٹھا، ساتھ ہی جیب سے سائلنسر لگا گلاک برآمد کیا، مگر ہاتھ سیدھا بھی نہیں کر پایا تھا کہ ڈرائیور نے لات گھمائی۔ اس کے بوٹ کی ایڑی میرے دائیں ہاتھ سے ٹکرائی، پستول اڑ کر دور جا گرا۔ ایک منحوس آواز نے میری سماعتوں میں زہر انڈیلا۔ میں نے سنی سے تمہیں زندہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ اپاہج نہ بنانے کی کوئی شک معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ کار کی تیز روشنی کی وجہ سے اس کی شکل واضح نہیں دکھائی دے رہی تھی، تبھی اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ وہ اکیلا ہی تھا اور حقیقت تو یہ تھی کہ کار سے 4 افراد کے برآمد ہونے پر مجھے اتنی پریشانی کا سامنا نہ ہوتا جو اس اکیلے شخص کے ٹکرانے سے ہونے والا تھا۔ وہ انتہائی نڈر، مکار، پھرتیلا اور بہترین لڑاکا تھا۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن سے خالی ہاتھ لڑنا سراسر گھاٹے اور نقصان کا باعث بنتا ہے، اور کرن چاولہ کا شمار انہی دشمنوں میں ہوتا تھا۔
ममता दीदी की वजह से वो एक बार बच निकला था और आज उसी दिन का बदला चुकाने पहुंच गया था। मेरी हकीकी सलाहियत अच्छा निशानेबाज होना है। जिस्मानी दाव पेच में नाकाबिल शिकस्त होने का दावेदार मैं कभी नहीं रहा। गो खुद को मोम का पुतला भी नहीं समझता और अल्हम्दुलिल्लाह तब तक खाली हाथ भी किसी से मार नहीं खाई थी। लेकिन करण चावला माफी देने के चक्कर में नहीं था। उसे हाथापाई करते वक्त जीत का पलड़ा झुकाना काफी दुश्वार था। चंद गाड़ियों की रोशनी भी उस तरफ आने लगी जो यकीनन करण चावला के साथ थी। अगर वो पहुंच जाते तो मेरे बचने की जो चंद फीसद उम्मीद थी वो भी दम तोड़ जाती। वो बमुश्किल बात खत्म कर पाया था कि मैंने पहल करते हुए उस पर छलांग लगाई। मेरा घुटना खतरनाक अंदाज में उसकी पसलियों की तरफ बढ़ा। कोहनियों का क्रॉस बनाकर उसने वार सहारा और फिर एकदम मेरे गिरबान में हाथ डालकर खुद को जमीन पर गिराते हुए उसने मेरे पेट में दायां पांव टिकाया और मैं उड़ते हुए करीबी मकान के दरवाजे से जा टकराया। निस्वानी चीख बुलंद हुई और मैं दरवाजा खोलने वाली औरत के लिए नीचे गिर गया। बेचारी शायद हंगामे की वजह मालूम करने निकल रही थी। औरत को संभालने और उसकी खैरियत दरियाफ्त करने की मोहलत नहीं थी। उसकी हाय वाय से कान बंद करते हुए मैंने एकदम उठकर दरवाजे को अंदर से कुंडी किया और भागकर दाएं जानिब की दीवार चढ़ गया। करण चावला ने लात मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और नाकाम होकर दीवार फलांग कर अंदर घुसा। तब तक मैं दीवार से होकर बरामदे के छज्जे से चिमटा और छत पर चढ़ गया। मुड़कर देखने पर करण चावला उसी दीवार पर नजर आया। मुंडेर से ईंट उठाकर मैंने जोर से घुमाई। निशाना उसका सर था, मगर खाली हाथ का निशाना मेरी राइफल की तरह दुरुस्त नहीं निकला था। ईंट उसकी छाती से टकराई और वो संभलने की कोशिश में नीचे गिर गया। उसका अंजाम देखने को मैं नहीं रुका था। वो गरीबों की बस्ती थी। ज्यादातर मकानों की छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। मैं ऊपर ही ऊपर भाग पड़ा था। अगली छत पर पहुंचते ही मैंने भागते भागते मुड़कर देखा, करण पहली छत पर पहुंच गया था। दोनों की दौड़ शुरू हुई। कहते हैं चीता हिरन से तेज रफ्तार होता है, लेकिन जब जान पर बन आती है तो अक्सर औकात हिरन चीते को जुल देकर निकल जाता है। बिलाशुबा करण चावला को चीता गर्दान कर मैं खुद को हिरन नहीं कह रहा, लेकिन उसके पीछे एजेंसी के दर्जन भर मंझे हुए एजेंट थे और 14-15 दुश्मन मिलकर मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे जितना एक चीता हिरन के लिए हो सकता है। 7-8 छतों को उबूर करने के बाद मुझे खला नजर आया जो गली का था। जब गली की जरूरत थी तो नजर नहीं आ रही थी और अब नुकसानदेह थी तो एकदम जाहिर हो गई थी। उस इलाके का सरसरी जायजा मैंने लिया हुआ था और बड़ी गली के अलावा बाकी गलियां 9-10 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। अब नामालूम वो गली 9-10 फुट ही थी या ज्यादा चौड़ी थी। मैं रफ्तार कम किए बगैर आगे बढ़ता गया। आखिरी कदम मुंडेर पर पड़ा और गली का खला हवा में तैरते हुए मेरे कदम दूसरी छत से टकराए। गिरते साथ जिस्म की हरकत को जारी रखते हुए मेरे दोनों पांव आगे बढ़े और छत पर लोट लगाता हुआ मैं दोबारा खड़ा होकर दौड़ पड़ा। अगली छत पर कूदते वक्त मुझे अकबी छत पर धप की आवाज सुनाई दी। चंद मजीद छतें फलांगने के बाद करण चावला के पांव की आवाज नजदीक सुनाई देने लगी। तभी आगे जाकर मुझे एक और खला नजर आया और इस बार गली नहीं खाली प्लॉट था। मैंने कदमों की रफ्तार धीमी की और फिर एकदम मुड़कर घुटना उठा दिया। तेज रफ्तारी के बावजूद उसने कदम रोककर मेरे घुटने के सामने हाथ करने की कोशिश की, मगर उचटता हुआ वार उसके पेट में लग गया था। तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उसने उछलकर मुझे टक्कर मारना चाही। मैं एकदम सामने से हटा। वो अपनी झोंक में आगे बढ़ा। तभी मेरी लात उसकी तशरीफ से टकराई। वो औंधे मुंह गिरने लगा, मगर एकदम हाथ नीचे टेक कर वो लुढ़कता हुआ उठ गया। उसके संभलने से पहले मैंने उछलकर उसके पेट में लात मारने की कोशिश की, मगर वो संभल चुका था। जिस्म को दोहरा करते हुए उसने मेरी लात की जरब को हल्का किया। साथ ही उसके हाथों ने बर्क रफ्तारी से मेरी पिंडली पर गिरफ्त जमा ली और मुझे घुमाकर उछाल दिया। मैं लुढ़कता हुआ मुंडेर के करीब पहुंचा और किनारे पर हाथ जमा कर नीचे लटकते हुए कूद गया। जमीन पर पांव लगते ही मैं फिर भागा, मगर कदम 2 लेते ही करण के नीचे कूदने का धमाका सुनाई दे गया। शायद 2-3 कदम दौड़कर उसने लंबी छलांग लगाई थी। शायद इसलिए कहा कि मुझे नजर नहीं आया था, अलबत्ता कमर पर उसके सर की भरपूर टक्कर लगी थी, जिससे अंदाजा यही हुआ कि उसने हवा में तैरते हुए वार किया था। मैं औंधे मुंह गिरा। एकदम करवट तब्दील करके मैंने दाईं टांग सुकेड़ी और जूं ही वो मुझे छापने को झुका, उसकी छाती पर रसीद की। वो पीठ के बल गिरा। उसकी छाती पर सवार होते हुए मैंने जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर रसीद किया, मगर उसने कोहनी सामने लाकर चेहरे को बचा लिया था। मैंने ताबड़तोड़ चंद वार किए, मगर उसके चेहरे को निशाना न बना सका।
और फिर अचानक ही मेरे बाजू को गिरफ्त में लेते हुए उसने दूसरे बाजू के जोर से मुझे नीचे फेंका। अब वो ऊपर था। उसका पहला मुक्का खासी कुव्वत से मेरे जबड़े से टकराया। मेरे मुंह में खून भर गया था, लेकिन उसके दूसरे वार को मैंने कोहनी पर सहार लिया था। अगर दूसरा मुक्का भी लग गया होता तो मेरी मुदाफियत दम तोड़ जाती। उसके मुसलसल मुक्कों को कोहनियों और बाजुओं पर सहार कर मैंने घुटने इकट्ठे किए और एकदम उसके दोनों हाथों को गिरफ्त में लेते हुए जोरदार टक्कर उसकी नाक पर रसीद की। उसके होंठों से हल्की सी सिसकी बरामद हुई। तेजी में सुस्ती का दखूल हुआ और मैंने उसे घुमाकर नीचे फेंका और दोबारा सवारी गांठ ली। मगर मेरे मुक्का मारने से पहले उसने टांगों और निचले धड़ को झटका देकर उल्टी कलाबाजी खाई। मैं उसके सर के ऊपर से होकर अकबी जानिब गिरा। वो मेरे ऊपर से होता हुआ सीधा खड़ा हो गया था। मैंने तेजी से उठने की कोशिश की, मगर इतनी देर में उसने संभल कर मेरे चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की। उठने की वजह से उसकी लात मेरी छाती से टकराई। मैं कूल्हों के बल गिरा और उसकी अगली ठोकर लगने से पहले उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया था। तब तक वो मेरे पेट में मारने को लात घुमा चुका था। कोहनियों का क्रॉस बनाकर मैंने उसकी जोरदार ज़र्ब को सहारा और इससे पहले कि वो पीछे खींच पाता उसकी टांग पर दोनों बाजुओं की गिरफ्त बनाकर उसे जमीन पर दे मारा। जो ही उसे छापने को झुका, उसने अपनी टांगे ऑक्टोपस की तरह मेरी गर्दन से लपेट दी। मैंने फौरन दायां बाजू उसकी टांगों से गुजार कर गर्दन को बेपनाह दबाव से छुटकारा दिया और फिर घुटनों पर जोर देकर उसे ऊपर उठाया और एकदम उसकी पीठ जमीन पर दे मारी। उसी वक्त हम तेज रोशनी में नहा गए थे, मगर रोशनी ने हमारी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाया था। मैंने दोबारा पहले वाली हरकत दोहराकर उसकी पीठ जमीन से टकराई। उसके पांव की गिरफ्त खुद ब खुद मेरी गर्दन पर ढीली पड़ गई थी। एकदम सर को उसकी टांगों से निकालते हुए मैं पीछे हुआ और इससे पहले कि वो उठ पाता उसे छाप लिया, मगर गिरफ्त जमाने से पहले उसने बाजुओं से पकड़कर मुझे घुमाकर नीचे कर लिया था। वो ममता दीदी की आवाज थी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। बज़ाहिर वो वक्त आन पहुंचा था कि एक बहन के सामने एक जानिब भाई और दूसरी जानिब वतन और महबूब के चुनाव का मरहला था। अगर बात सिर्फ मेरी और करण चावला की होती तो वो जरूर मखमसे में पड़ती, मगर देश की मोहब्बत उसकी नस नस में भरी थी। मुझे जरा भर भी उम्मीद नहीं थी कि वो गोली चलाते हुए झिझकेगी। अलबत्ता हम दोनों गुत्थम गुत्था थे। करण चावला सख्त जान हरीफ था और उम्मीद यही थी कि मेरे मुकाबले को उसे किसी से मदद न लेना पड़ती। जीत का हुमा उसके सर पर चकरा रहा था। मैं खातिर खा मज़ाहमत कर रहा था, लेकिन मेरी जंग जारहाना की बजाय मुदाफियाती थी, क्योंकि मेरी तरजीह लड़ाई की बजाय फरार थी। ममता दीदी चिल्लाई, राज रोहन पीछे हो जाओ दोनों। मगर उस वक्त लड़ाई छोड़ना करण चावला के लिए नहीं, मेरे लिए नुकसानदेह था। लुढ़कनियां खाते हुए मैं ऊपर हुआ। मेरा जोरदार घूंसा निशाने पर लगा। करण का सर जमीन से टकराया। मेरा अगला घूंसा भी उसी रफ्तार से नीचे आया, मगर उसने कोहनी आगे कर ली। 2-3 मुक्के कोहनियों पर रोककर उसने मेरे हाथ थाम लिए थे। उसकी कोशिश मुझे दूर उछालने की थी। तभी हमें अलहदा न होते देखकर ममता दीदी जरा करीब हुई। एक और गाड़ी नजदीक पहुंच गई थी। मैंने सूरत से फैसला करते हुए जोर लगाकर करण चावला का सर ममता दीदी की जानिब मोड़ा। उसकी टांगों पर से जिस्म का दबाव कम करके उसे मौका दिया कि मुझे पीछे उछाले, और मेरी तदबीर कामयाब रही थी। करण चावला ने बिजली किसी सूरत से मेरे पेट पर पांव टिकाया और मुझे पीछे उछाल दिया। जमीन पर लोट लगाते हुए मैं ममता दीदी के करीब हुआ। उस वक्त वो चाहती तो मुझे गोली मार सकती थी, मगर उनकी हद्दुल वसा कोशिश यही थी कि मुझे जख्मी न होना पड़े। तभी नजरअंदाज कर गईं और ये शफकत उन्हें महंगी पड़ गई। एकदम झपटते हुए मैंने पिस्तौल छीना और उछलकर उन दोनों से दूर हटा कि वो मुझे लपेट कर काबू करने की कोशिश कर सकती थी। इतना तो उन्हें भी यकीन था कि मैं कम से कम उन पर गोली नहीं चलाऊंगा। वहां पहुंचने वाली नई कार से 2 अफराद बरामद हुए। दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। खबरदार, वो जोरदार अंदाज में धाड़े, मगर उनके मुंह से अल्फाज और मेरे पिस्तौल की बैरल से गोली एक साथ निकली। मुसलसल 2 मरतबा ट्रिगर दबाकर मैंने उनके पिस्तौल वाले हाथों का कामयाबी से निशाना बनाया और जानबूझकर पिस्तौल की बजाय हाथों पर गोली मारी ताकि वो आर्जी तौर पर बेकार हो जाएं, और मुझे नाकामी नहीं हुई थी। तेज कराहों से उन्होंने जख्मी हाथों को बगल में दबा लिया था। ममता दीदी मेरी जानिब दौड़ी, राज नहीं। झुकाई देकर मैंने जान बचाई। साथ ही मेरी नजरों ने करण चावला को ढूंढा। मेरे हाथों में पिस्तौल आते ही उसने दीवार की आड़ लेने को छलांग लगाई थी, और जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तब तक वो आड़ ले चुका था। उसे निशाना बनाने की कोशिश फजूल थी। नई आने वाली कार के अगले पहियों पर एक एक गोली जाया करके मैं फौरन ममता दीदी की कार की तरफ भागा कि फरार होने का इससे सुनहरी मौका नहीं मिल सकता था।
ममता दीदी भी मुझे पकड़ने को दौड़ी, मगर उनके करीब आने से पहले मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। अफरा तफरी में वो कार को चलता छोड़कर नीचे उतरी। कार की बत्तियां रोशन थीं। पिस्तौल जेब में डालकर मैंने हैंड ब्रेक आजाद की और गियर लगाते हुए एक्सीलरेटर पर पांव दबा दिया, मगर तब तक ममता दीदी दौड़कर अंदर घुस आई थी। राज, कार रोको, तुम्हें कह रही हूँ रोको, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरे हाथों से स्टीयरिंग छीनने की कोशिश करते उनकी धमकियां भी जारी थीं। मैंने उन्हें जवाब देने के बजाय कार को तीसरे गियर में डाला और एक्सीलरेटर मुकम्मल दबा दिया। सड़क करीब ही थी, लेकिन मैं इत्मीनान से ड्राइव नहीं कर पा रहा था। ममता दीदी की कोशिश से कार लहराई। उन्हें लगा कि मैं कहीं ठोक दूंगा। स्टीयरिंग छोड़कर वो पीछे हटी। साथ ही उनका जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगा। राज, बेशरम, बेहया, कार रोको। गुस्से से मारे हुए थप्पड़ में भी चाहत पिन्हा थी, वरना वो तरबियत याफ्ता थी। थप्पड़ की बजाय कराटे का दाव पेच भी आजमा सकती थी। मुसलसल 2-3 थप्पड़ खाकर भी जब मैंने कम करने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी तो वो दोबारा स्टीयरिंग पर झपटी और कार को डगमगाता पाकर मुझे बाजुओं में भरने की कोशिश करने लगी, ताकि स्टीयरिंग से हाथ छूटने पर मैं रुकने पर मजबूर हो जाऊं। हम सड़क पर चढ़कर फरलांग भर आगे आ गए थे। अगर फौरी तौर पर ममता दीदी का हल न करता तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवा देना था। एक्सीलरेटर से पांव हटाकर मैंने ब्रेक दबाई और हैंड ब्रेक खींचकर ममता दीदी के हाथों को थाम लिया। वो बोली, राज, तुम्हें मेरे सर की कसम, भागना छोड़ो और नीचे उतरो। वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। हमने बस बरतानवी चुड़ैल को पकड़ना है, यकीन करो। हाथों को मेरी गिरफ्त से आजाद करवाने की जिद्दोजहद करते हुए वो मुसलसल बोल रही थी। वो लड़ाई भिड़ाई की माहिर थी, मगर मुझ पर हाथ नहीं उठा रही थी। न मैं उन्हें चोट पहुंचाना चाहता था और चोट पहुंचाए बगैर उनसे जान छुड़ाना नामुमकिन लग रहा था। गो मेरे पास तो पिस्तौल भी मौजूद था, लेकिन ममता दीदी के खिलाफ पिस्तौल निकालने का मतलब अपनी गर्दन फंसाना था। मैं तो उन पर गोली न चला सकता। शायद वो देश की मोहब्बत में ऐसा कर गुजरती। इसी छीना झपटी में अचानक एक तरकीब जहन में आई। मैंने फौरन उन्हें बाहों के घेरे में ले लिया। बिलाशुबा वो बहुत ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत थी, मगर उनसे लिपटते वक्त मुझे हमेशा यूं लगा जैसे फुफ्फो जान या अम्मी जान के गले लगने पर एहसास होता है। मैंने कहा, दीदी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? उनके जहन को भटकाने की खातिर मैंने गुफ्तगू जारी रखी, ताकि उन्हें पता न लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। इंडिया सरकार आपकी मुलाजिम नहीं है, मालिक है। मेरे बोलने से उनकी मज़ाहमत हल्की हुई। उन्हें लगा कि एक भाई बहन को गले लगाकर जज्बाती धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है, मगर मेरा मंसूबा कोई और था। हल्का सा उचककर मैंने कमर से उनके कोट को पकड़ा और एकदम कोट को ऊपर की तरफ खींचा और उनके सर से गुजार कर कोट सामने ले आया। साथ ही कोट को चक्कर देकर उसके हाथों को मजीद जकड़ दिया, यूं कि उसके बाजुओं से कोट नहीं उतरा था। बिल्कुल आखिरी लम्हे में उन्होंने मचल कर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर देर हो गई थी। वो मेरे बाजुओं के घेरे में थी, इसलिए कोट को उतार या पहन नहीं सकती थी। फैशनेबल फिट कोट को उतारने पहनने में वैसे भी जरा सी दिक्कत होती है, और उस वक्त तो कोट ने हथकड़ी की तरह उनके हाथों को जकड़ लिया था और मैं उन्हें मौका नहीं दे रहा था कि वो कोट उतार फेंकें या पहनकर हाथों को आजाद करवा लें। उन्हें बाजुओं में ही जकड़े हुए मैं दरवाजे की जानिब खिसका और दरवाजा खोलकर उन्हें साथ लिए नीचे उतराया। वो जान छुड़ाने को जोर जोर से मचल रही थी, साथ ही रूहानसा होकर बोलने लगी, राज, बेशरम, बेहया, बहुत पिटोगे। अब मुझसे रियायत की तवक्को न रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेहतर होगा शराफत से मेरे साथ चलो। उन्हें आराम से सड़क पर बिठाकर मैं बर्क रफ्तारी से कार में घुसा और दरवाजे को फौरन कुफल कर दिया। कोट ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड ही उन्हें उलझा सका था, और वो कलील वक्त मेरे लिए काफी था। वो दरवाजे के हैंडल से पकड़कर मुसलसल झटके देते हुए मुझे पुकार रही थी, राज, रुको, मैं तुम्हें कह रही हूँ, रुक जाओ, प्लीज मान जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। वो बावली होकर दरवाजे से चिमटी थी। अचानक उन्हें ख्याल आया और कार को सामने से रोकने को वो आगे बढ़ी। अगर ये ख्याल उन्हें पहले आ जाता तो मेरे लिए मसला खड़ा कर सकती थी, मगर तब तक मैं स्टीयरिंग पर बैठकर हैंड ब्रेक को आजाद करके कार आगे बढ़ा चुका था। चंद कदम साथ दौड़कर उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की और फिर कार आगे निकल गई। उसके बाद भी वो मुझे आवाज देकर चीखते हुए भागती रही। आगे सड़क साफ थी और वहां से जल्द से जल्द दूर जाना ही मुझे बचा सकता था। शायद उनकी दूसरी कारों ने गली के दूसरे सिरे को कवर किया हुआ था ताकि मैं उस जानिब से न भाग सकूं। यह भी मुमकिन था कि वो इन खोलियों में लॉरा ब्राउन की तलाश में लगे होते। आग बुझाने की कोशिशों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बहरहाल कुछ भी था, उनका इकट्ठ मेरे लिए नुकसानदेह साबित होता। करण चावला का खुद पर एतमाद था, बिलाशुबा उसका एतमाद बेजाना था। अगर ममता दीदी हिमाकत न करती और अपने साथियों का इंतजार करके उन्हें मुझे जकड़ने का मौका
मौका देती तो मैं अब तक हिरासत में होता। सड़क पर मुसलसल आगे बढ़ना किसी तौर मुनासिब न था। उनके लिए सड़क पर ताक़ुब करना और नाका लगाकर मेरी हरकत को रोकना निहायत आसान था, इसलिए जितनी जल्दी मैं सड़क छोड़ देता बेहतर था। 1.5-2 किलोमीटर आगे आते ही मैं सड़क से उतरकर चौड़ी गली में घुस गया। लेकिन सिर्फ सड़क से उतरना भी मसले का हल नहीं था। वो रॉ की कार थी और उसमें ट्रैकर की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता मेरी कोशिश सिर्फ जल्दी से उस इलाके से बाहर निकलना थी। 3-4 गलियों से गुजरने के बाद भी कोई सफर का मुतबादिल जरिया नहीं मिला था। रात चूंकि काफी बीत चुकी थी, इसलिए गलियों में नकलो हरकत न होने के बराबर रह गई थी। मेरी कोशिश किसी मोटरसाइकिल सवार को शिकार करने की थी, मगर मोटरसाइकिल वाला कोई न मिला। अलबत्ता एक कार को देखकर मैंने किस्मत आजमाई का फैसला किया और अपनी कार चौड़ी गली के एक तरफ करते हुए नीचे उतरा। सामने से आने वाली कार करीब पहुंच गई थी। मेरे हाथ उठाने पर उसने फौरन ब्रेक लगाई। वजह यही थी कि मैं जिस शानदार कार से उतरा था उसका मालिक उचक्का या निचले दर्जे का डकैत नहीं हो सकता था। शीशा नीचे करके उसने बाहर झांका। वो एक खुश शक्ल लड़की थी। सफेद कोट देखकर मुझे अंदाजा लगाने में देर न हुई कि वो डॉक्टर थी और अपनी शिफ्ट खत्म करके आ रही थी। उसने सर पर काले रंग की गर्म टोपी पहन रखी थी, जबकि उसी रंग का मफलर नुमा दुपट्टा उसके गले में था। वो मुस्तफसिर हुई, जी? मैंने कहा, थोड़ा सा पेट्रोल मिल जाएगा जो मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचा दे। मैंने ये तासुर दिया गोया मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है। मैं बराह रास्त पेट्रोल खत्म होने का कह भी सकता था, लेकिन हद्दुल वसा मेरी कोशिश यही होती कि झूठ न बोलूं। गो आम जिंदगी में झूठ एक लानत और गैर इखलाकी और गिरी हुई हरकत है, मगर जासूस की जिंदगी में हरदम ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं कि झूठ बोलना उसके लिए नागुज़ीर हो जाता है। लेकिन ऐसे हालात में भी मैं अल्फाज के चुनाव पर ध्यान देता था कि झूठ बोलने की बजाय मुखातिब के दिमाग में मनचाहा मतलब घुसेड़ूं। उसने नफी में सर हिलाया, माजरत खा हूं भाई। मैं दरखास्त गुजार हुआ, किसी करीबी पेट्रोल पंप तक ले जा सकती हैं? उसके याकूती होंठों पर रस्मी मुस्कुराहट उभरी। भाई, ड्यूटी खत्म करके आ रही हूँ और सख्त थकी हुई हूँ। आप थोड़ा आगे चले जाएं, सड़क ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ से टैक्सी या लिफ्ट मिल जाएगी। मुझे पहले से यही उम्मीद थी। किसी औरत का अजनबी मर्द को लिफ्ट देना काफी मुश्किल था। कीमती कार की वजह से रुकी जरूर थी, लेकिन इससे ज्यादा एतबार वो नहीं कर सकती थी। मैंने एकदम पिस्तौल निकाल कर उस पर तान लिया। क्षमा चाहता हूँ बहन जी, लेकिन मजबूरी है। उसकी आंखों में खौफ उभरा। क्या 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 चाहते हो? मैं इत्मीनान से बोला, सिर्फ लिफ्ट। वो हकलाते हुए बोली, भाई मैं एक डॉक्टर हूँ, अवाम की खिदमतगार, ड्यूटी से आ रही हूँ। क्या अपने खिदमतगारों को यूं तकलीफ दी जाती है? मैं इत्मीनान से बोला, लिफ्ट लेना कौन सी तकलीफ है? आप अवाम की खिदमतगार हैं और मैं थोड़ी सी खिदमत ही का मुतकाजी हूँ। वो लरसते हुए बोली, आप बेशक कार ले जाएं, मगर मैंने कहा, वादा करता हूँ जरा सी भी तकलीफ नहीं दूंगा। आप मेरे लिए बहन की तरह काबिल एहतराम हैं। भाई के लिए चंद किलोमीटर सफर की जहमत कर लें। वो गिड़गिड़ाई, प्लीज। यकीनन उस लम्हे को कोस रही होगी जब मेरे लिए कार रोकी थी। पिस्तौल की बैरल से मैंने उसे ड्राइविंग सीट छोड़ने का इशारा किया। सुना नहीं। वो जल्दी से दूसरी सीट पर मुंतकिल हो गई। मैंने कहा, मुझे माफ कर देना। नदामत भरे लहजे में कहते हुए मैंने ड्राइविंग सीट संभाली और कार आगे बढ़ा दी। वो अपने हाथ इस्तरारी अंदाज में मरोड़ रही थी। यकीन करो, मजबूर ना होता तो आपको कभी तकलीफ ना पहुंचाता। दर हकीकत मेरी जान को खतरा है। मेरी कार को दुश्मन पहचानते हैं, इसलिए आपकी कार में बैठना पड़ा। और जूं ही कोई टैक्सी वगैरह नजर आई, आपको जाने दूंगा। गहरा सांस लेते हुए वो खामोश रही। शक होने के बावजूद वो यकीन करने पर मजबूर थी। थोड़ा आगे जाते ही मैं दूसरी गली में मुड़ा जो आगे जाकर सड़क से मिल रही थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।